નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. જીવનમાં હાસ્ય ખૂબ જરૂરી છે. હાસ્ય વગરનું જીવન નકામું હોય છે. સુખ દુઃખ તો જીવનમાં આવ્યા જ કરે છે, પણ જીવનમાં હસવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હસવાથી આપણે જીવનની અંદર તાજગી અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેતું હોય છે. એટલે આપણે એક સરસ મજાનો પાઠ જે છે એ આપણે જોઈએ, મુસ્કાન કે મોતી. મુસ્કાન કે મોતી. મુસ્કાન કે મોતી ये पाठ पढ़े बड़ी। तो एमा हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घ आयु बनाकर दीर्घ आयु का વધારે જીવન એ વધારે તે જીવી શકે, દીર્ઘ આયુ વધારે જીવી શકે. હાસ્ય વ્યક્તિના જીવનની અંદર એકદમ વ્યક્તિને નિરોગી રાખે છે. ગમે તેટલા દુઃખ પડ્યા હોય તોય તે વ્યક્તિને હાસ્ય એકદમ નિરોગી રાખે છે. કષ્ટ પડે, સંઘર્ષ થાય, પણ જીવનમાં આપણું જે સુખ છે, આપણું જે હાસ્ય છે તે છીનવાઈ ના જવું જોઈએ. ગરીબ વ્યક્તિ જે ગરીબ રહે છે તો એના જીવન કશું દુઃખ જ નહીં, એ પણ જિંદગીના જીવનો જીવે છે, એ પણ હાસ્યથી જીવે છે. લોકો સાથે તહેવારો ઉજવે છે, બધા સાથે પણ કાર્ય કરે છે. તો પછી હાસ્ય જીવનનું સૌથી મોટું શક્તિ પ્રદાન કરે છે. ઉસે દીર્ઘ આયુષ્ય બનાता है. हंसी क्रोध चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वही सुख और स्वास्थ्य का की चाबी है. हंसी क्रोध અને ચિંતા અને ક્ષોભને ભગાવી દે છે અને સુખ અને સ્વાસ્થ્યની ચાવી છે. ગમે તેટલું ટેન્શન માથે હોય પણ આપણે જીવનની અંદર કંઈક આનંદનો અનુભવ તો લઈ જ લેવો જોઈએ. અને આ હાસ્ય એ નિરોગી, કોઈ ટેલિવિઝન જોવો, કોઈ કોમેડી સિરિયલ જોવો, કોમેડી ફિલ્મ જોવો, અથવા તો તમે કોઈ કોમેડી સ્ટોરી વાંચો, જેમાં હાસ્ય રસિક હોય એવું કંઈક જોવો તો આપણને અંદરથી હાસ્ય, કુદરતી હાસ્ય આવે કે નિરોગી છે. એટલા લોકો બગીચા કૃત્રિમ હાસ્ય વ્યવસ્થા લોકો છે, ડોહા હા 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 એ હાસ્ય કરી કૃત્રિમ હાસ્ય, પણ એને પણ નિરોગી કરે છે એનાથી નહીં. પછી કુદરતી હાસ્ય આવે છે તે અહીંયા આપણે જોવાનું છે. हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है. आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें. मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ कैसे चुटकुले दिए हुए हैं, देखिए. चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू बोला, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा है. कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस कितना बड़ा होता है, जाडो હોય છે हिप्पोपोटेमस. चिंटू એ કીધું કે તે મને રાજુને કે ફટાફટ કેમ માર્યો? ત્યારે પિન્ટુ કહે છે કે મેં 15 दिन पहला मैंने એને 15 દિવસ પહેલા મને હિપ્પોપોટેમસ કીધું. તો કે ચિંટુ તો કે 15 દિવસ પછી તે કેમ માર્યો? ત્યારે કે કાલે જ મેં સર્કસમાં હિપ્પોપોટેમસ જોયો, અને અત્યારે જોયો તો એટલા માટે. પછી બીજી વાત, પતિ પોતાની પત્નીને કહે છે, अब मैं भुलक्कड़ नहीं होगा, मुझे सब याद रहेगा. पति का वह कैसे? पति कहते, देख मैंने एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके. है राम, यह किताब तो आप 10वीं बार लाए हैं. 10वीं बार ये किताब लाए हैं, याद रखने के ये तरीके कितनी बार लाएंगे? तो भूली गया था कि जूनी किताब लाया था, एक बार से भूली गया का 10वीं वक्त તમે લાવ્યા કે? भिखारी कैसे 1 रुपया दे दो साहब, 1 रुपया दे दो साहब. करके कल आना. भिखारी कल आने के चक्कर में उस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं. कल आने में चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपया. भिखारी ने लाखों रुपया विचारो पड़ी गयो. भिखारी ने लाख रुपया क्यों विचारो पड़ी गयो? यार एक शिक्षक रमेश ने कहे, रमेश 50 से कितने काउंट करने से 5 बजेंगे? क्या बता रहे गुरुजी? इतना नहीं आता आपको? गुरुजी 0 निकाल दे 5 बजेंगे. देखिए 50 માં કેટલા રૂપિયા ઓછા કરી તો 5 વધે? બોલે સીધી રકમ ગઈ. 50 ની અંદર કેટલા રૂપિયા 0 કાઢ નાખો એટલે ક્યાં વધે? 5 વધે. 5 પૂરું કામ. सुशील कहते हैं, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी डिबिया गिनते हैं कि कम है कि नहीं. तब गीता कहती है, मेरे पिताजी तो माचिस की डिबिया खरीदते तो है पर साथ ही सारी तिलिया जला कर देखते कि कोई तिलिया खराब तो नहीं है. भाई चलावी दीदी और પછી શું કરે ઉપયોગમાં આવે નહીં.
ઉપયોગમાં. તો પછી પાછળ જોઈએ આપણે કે सुरेश कहे छे यह टायर कैसे पंचर हो गए? वैसे एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? अरे क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया. बोलो कार के नीचे आ गया और टायर कांच नहीं. પેલો આદમી માણસથી મરી ગયો ન જોતો પણ બોટલ ને લીધે ટાયર પંચર થઈ ગયું તેમ દેખાણું. અરે શું કહું કે એ માણસ એના જેબમાં બોટલ હતી ને ખીચામાં બોટલ હતી जो मेरी कार के नीचे आ गया ये आदमी. अब की बाहर निकालिए. अपने इस चित्र में देखा है, चित्र देखिए. કેટલાક લોકોને પ્રણામ કરવાની પણ ઓલી હોય છે, આળસ થતી હોય છે. એટલે આવી રીતના બૂટ ઉતારવાની પણ આળસ થતી હોય છે. એટલે આવી રીતના તે લાંબા થઈને તે બૂટ ઉતારીને તે પ્રણામ કરે. બૂટ પહેરીને પણ પ્રણામ બહારથી કરે. બૂટના જે છે પગ બહાર રાખે અને પોતે અંદર પ્રણામ કરે છે. જોઈએ શું કે છે? आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है. देखिए इस चित्र में आपने देखिए आदमी जो जूते निकालने के बजाय क्या करते हैं, आदमी को प्रणाम करते हैं, जूते पहनकर भी प्रणाम करता है. कैसी लोग देखिए. फिर दूसरे जोक्स. डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए. रावण પોતે ડોક્ટર પાસે ગયો ને કે મને મારા દિમાગમાં દર્દ છે, મારા શરીરમાં મારા માથામાં દર્દ છે, પણ ખબર નહીં કે ક્યાં માથામાં દર્દ છે. તો હે બીજે हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा. अब हाथी की बारी. हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है. आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र. जरूर लगे तो इससे चित्र को उल्टा कर दीजिए. देखिए इस चित्र को देखिए आप, यहाँ है, इस चित्र को देखिए, उल्टा करो. चित्र ने उल्टो करो. मनुष्य हाथी पड़ी को जो तो खरा आम करिए કે હાથી પર તો ઉંદર ડીંગાઈ ગયો. આમ કરશો એટલે શું થશે? મનુષ્ય હાથી પડી ગયો. પછી બીજી એક જોક્સ છે એ જોઈએ આપણે. अमित ने कहा पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 साल बताई और आज भी तुमने 32 साल बताई. हम पहलवान है, एक बार जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते. हम पहलवान है, पहले 5 વર્ષ પહેલા તે 32 વર્ષ बताया, અત્યારે 32 વર્ષ बताया, અમે તો પહેલવાન છો, તો ગમે તે કહી શકીએ. सुरेंद्र ने नवीन इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? जानवर की. सुंदर, यह तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि जानवर कभी चश्मा पहनते नहीं है. चश्मा पहनते नहीं है. ठीक कहते हैं. अंकल कहता है, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? अरे अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते? क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते? बिल એટલે દર રહે છે. બિલ એટલે કે આપણે કિંમત ભરવાની હોય, પૈસા ભરવાના, એને બિલ લેવાનું હોય એના માટે. આ શું શહેરમાં પણ લોકો બિલો મારે છે કે દરમાં પણ રહે છે? વિચાર કરો. એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. नौकर कहता है मालिक से, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक कहते डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने के लिए कहा. डबल रोटी खाने के लिए कहा है. शिक्षक कहता है हेतल मिठाई नहीं खाती है. इसमें हेतल क्या है? मूर्ख है. हेतल मिठाई नहीं खाती, हेतल क्या है? मूर्ख कहवाय है. और माँ कहते हैं अपने बेटे से, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? चल कर. कुत्ते कहते हैं चल कर, चाली ने डाल थोड़े पकड़ा पानी खाई ने कुड़ी ना आवे, चाली ने आए. ओके. પછી બીજો એક જોક્સ છે, જોઈએ. दुकानदार कहते हैं आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए? मौका चाहिए.
કરવાનો મોકો બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. પછી દુકાનદાર કે તમારે શું જોઈએ છે? તમારે બધી ચીજો જોવો છો. મારે મોકો જોઈએ છે. મોકો चोरी कर दी थी. एक न्यायाधीश ने कहा बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ. चोर का ताला. तोड़ने का कारण बताओ. ताला. ताला से तोड़िए के. एक भुलक्कड़ आदमी ने अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया. कहने लगा डॉक्टर से, यह आदमी आपको कब से है? यह आदत आपको कब से है? याद नहीं, भूल गया हूं. एक मानस भुलक्कड़ो मानस इलाज पर अस्पताल में जाए छे त्यारे के छे भूल जाने की बीमारी के बारे में कहता कि याद था कि क्या थी गई ये मन न खबर क्या थी से उनके. बीजे एक जोक छे જોઈએ. दादाजी पुत्र के मित्र से कहते हैं, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू कहते, आजकल बहुत कम आता हूं. बहुत कम आते हो? यह तो बहुत अच्छी बात है. कमल कहते, देखो बिजली आ गई. बिजली को बिल्ली समझ कर बिजली को बिल्ली से नहीं. इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर रखा है. दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई है. दादाजी ऊंचा थमके बोलिएगा नहीं. दादाजी છે એ સાંભળી શક્યા નહીં એટલે બીજી જગ્યાએ बिल्ली સમજણ. બીજો એક જોક છે. शिक्षक કહે છે, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र ने बोला, क्योंकि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे. सोनू धातु यानी कि संज्ञा, सोना यानी निद्रा अवस्था क्रिया. સોનાના બે પ્રકાર છે. એક સોનો એટલે ધાતુ સંજ્ઞા કહેવાય છે અને સોના એટલે સ્વીચાવ જે નિદ્રા અવસ્થા કહેવાય છે જે ક્રિયા કરવાની સોમાની ક્રિયા કરવાની. पिताजी बेटा क्यों थक गए? थोड़ी ही और चलना है. पिताजी अब और नहीं बस. बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना चाहिए होगा. दादाजी कहते 4 वर्ष के पोते से तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? दादाजी क्या प्रश्न का भी उत्तर होता है? उत्तर दिशा. दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? क्या बात है. कर पति कहते हैं, देखो सरकार ने आम आदमी पर कर बढ़ा दिया है. सरकार का और काम ही क्या है? वह जहाँ जाती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देते हैं, हाथ बढ़ा देते हैं, भिखारी की तरह हाथ बढ़ा देते हैं. मालिक कहते हैं, तुम बहुत बड़ा गधा है. ऐसा गधा नहीं गधा. ऐसा कहकर मुझे समझता न करे. मालिक बड़े तो आप है, बड़े तो मुझसे बड़े तो आप है. और पे बोलो नहीं. પછી શું કહે છે આગળ જોઈએ. पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए. पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता. रास्ते से करते हुए, पर मैं तो देता हूँ तुम्हारे जैसे गधे को रास्ता दे, पर मैं तो देता हूँ. न्यायालय में 2 वकील थे. पहला तू गधा है. तू तो बड़ा गधा है. पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है. ऑर्डर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ. न्यायाधीश से पूछा, होगा भी मान लेता हो के. लड़का कहे छे, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. लड़की का पिता कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे. जी नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए. जी. लड़का बोला, जी मैं भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए. जो किस कहते हैं, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है. योगेश, यार तू चुप कर. तू मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कुत्ते से ही पूछ रहा. गधा क्या चाहिए? सामने से गधे आकर देखता है, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं. सामने से गधा आया तो कहते हैं, देखो तुम्हारे रिश्तेदार है. जी नहीं, जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही रिश्तेदार तो खरा, पर क्या रे जયારે તમારે સાથે લગ્ન થયા પછી તે આવી શક્ય છે. एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया. शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा. खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा. कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा. अंत में उसकी सांस फूल गई.
थक कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी चरवाहे ने उसकी ओर देखा और काना कसा एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में उन्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने नापाक से जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। उसको जीत के कई कारण होते हैं। कुत्ता खरगोश शब्दानुक्रम से गोठो है, कुत्ता खरगोश चरवाहा जीव दौड़ शिकार शास्त्र। तो यहाँ आपने चुटकुले की प्रदान किया है। तो यहाँ जो चुटकुले है वो हमने पढ़े हैं। तो आपका जो क्लास है पुनः बताइए, इसका कोई होमवर्क नहीं है, आपको कोई होमवर्क करना नहीं है, इसीलिए आपको ये विशेष वीडियो देखना है। आज का जो क्लास है खत्म करते हैं, समाप्त। आभार। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण, हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? मूर्ख। एक, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? मुझे मिलने। दो, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए? मिठाई की खुशबू। तीन, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। बैंक का दरवाजा बंद था। चार, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। यह आदत आपको कब से है? आप जाने। 5, तू बहुत बड़ा गधा है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। 6, पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। हटो, बीच में ले, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। पर मैं तो गधे को पहले जाने देना चाहता हूँ। 7, न्यायालय में दो वकील। तू गधा है। तू तो बड़ा गधा है। तू बहुत बड़ा गधा है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी गधों का न्यायाधीश नहीं हूँ। 8, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। जी, मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। 9, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। 10, सामने से गधे आते देखकर पति बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। जी हाँ, रिश्तेदार तो हैं ही, पर हुए तो आपसे शादी करवाऊंगी। भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, भाषा बातचीत का एक माध्यम है। भाषा की कई सारी विशेषताएं हैं। अब कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी भाषा की एक विशेषता है। कभी कभार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला उस शब्द का दूसरा अर्थ समझता है, तब भी हास्य का पिटारा खुल जाता है। आइए भाषा की ऐसी कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति और उसके गलत अर्थ ग्रहण को समझने का प्रयत्न करें। शब्द को पढ़े और उसके अर्थ भी समझे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। 1. सोना। सोना का एक मतलब होता है धातु, ये संज्ञा बताता है। इसका दूसरा मतलब होता है निंद्रावस्था, ये क्रिया दर्शाता है। 2. बस। बस का मतलब होता है वाहन। बस का दूसरा मतलब होता है कंट्रोल में। 3. उत्तर।
उत्तर का मतलब होता है जवाब। इसका दूसरा मतलब उत्तर दिशा होता है। 4. कर। कर का एक मतलब होता है हाथ और कर का दूसरा मतलब होता है टैक्स, गुजराती में वेरो। विद्यार्थी मित्रों, अब उन शब्दों का वाक्य प्रयोग देखिए। जब सामने वाला अर्थ गलत करता है तो वह आप जो कहना चाहते हैं उसके बदले कुछ और ही समझता है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए और इस बात को समझिए। 1. लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। 2. आपका बेटा बड़ा हो गया है, पर आपका बेटा बस में तो है ना? जी नहीं, मेरा बेटा अभी बस में नहीं पर मेरे साथ गाड़ी में है। 3. पढ़ाने से पहले ही मैं जान लेना चाहता हूं कि बाद में मुझे कौन बताएगा उत्तर। बाद में क्यों? मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आपके ठीक दाएं हाथ की ओर ही उत्तर है। 4. सरस्वती के कर में क्या है? जी कुछ भी तो नहीं, देवी देवताओं पर कर लागू नहीं होता। मित्रों, ऐसे अन्य अनेकार्थी शब्द खोजकर चुटकुले बनाइए और कक्षा में सुनाइए।